Radhe Radhe, beautiful people. Hope you all are doing great. I am also doing well. So, in our last verse, that is verse number 25, why Arjuna was addressed as Partha by Lord Krishna. So, give your answer in the comment box, and those answers which I found are correct, I will those pin those answers and reward you. So let's start further. According to chapter 1, verse 26, then saw Partha stationed there in both the armies, fathers and grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, and friends too. गीता के पहले अध्याय के श्लोक 26 के हिसाब से अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा. On the battlefield, Arjuna could see all kinds of relatives. He could see persons like Bhurishwaha, who were his father's contemporaries, grandfathers Bhishma and Somadatta. Teachers like Dronacharya and Kripacharya, maternal uncles like Shalya and Shakuni, brothers like Duryodhana, sons like Lakshmana, friends like Ashwatthama, well-wishers like Kritvarma, etc. He could see also the armies which contained many of his friends. अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका. वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्वाहा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका. वह उन सेनाओं को भी देख सका जिसमें उसके अनेक मित्र थे. इस श्लोक के हिसाब से पिता जैसे कि भूरिश्वाहा जो कि कुरु साम्राज्य के राजा थे, जो कि सात्यकी के द्वारा मारे गए थे, और दादा जैसे कि भीष्म पितामह और सोमदत्ता जो कि भूरिश्वाहा के पिता थे और वो भी सात्यकी के द्वारा ही मारे गए थे. आचार्य जैसे कि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जिनसे उन्होंने शास्त्र विद्या ली थी, और मामा जैसे कि शल्य जो था वो माद्री का भाई था, और माद्री पांडु की दूसरी पत्नी थी. पांडु की 2 पत्नियां थी, एक थी कुंती और दूसरी माद्री. फिर उसके बाद आते हैं दोस्त जो कि अश्वत्थामा थे, जो कि द्रोणाचार्य के बेटे थे, और इसमें शुभ चिंतकों के भी नाम हैं जैसे कि कृतवर्मा और जयद्रथ. वहां पर सामने उनके भाई भी खड़े थे जो कि थे दुर्योधना और दुशासन.
सो उसके बाद हमारे पास आते हैं लक्ष्मण, जो कि उसके जो कि दुर्योधन के बेटे थे। और लक्ष्मण वही था जिसको अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने युद्ध में परास्त किया था। So we got a very good lesson from it, as just studied here that Kritvarma was his well-wisher, but he joins Duryodhana army. So here it comes that nothing is permanent on this earth. Everybody changes his position or its relation time to time according to need. We are not permanent on this earth. Either we exist here or we exist in the form of a body. So nobody, no relation, nothing else will going to stay here for the long time. It always shift the position. So the only relation which will remain always with us is that of Krishna. That relation is permanent in our life as well as in our other life. Either we are here or either we have left our body. So he is in our heart and real well-wisher of everyone. He will be always with us in the birth and after we leave our body. So this is the time of Kali Yuga. So we can't rely on anybody for anything. So the only thing we can do it to जैसे कि पहले भी आपको बताया था, we must do नाम सिमरन. Chanting is the only way to remember Krishna always. So there is a mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is the only mantra which can keep us near to Krishna. So never forget that. Nothing else will matter. Only this name chanting will help you everywhere, in every corner of the world, in every lok. तो श्लोक नंबर 26 से हमें क्या सीख मिलती है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते आते हैं, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, पर यहाँ कोई भी रिश्ता हमें कभी भी छोड़ के जा सकता है। वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, एक के साथ वो कम, दूसरे के साथ ज़्यादा। तो जो जितने भी दुनिया के रिश्ते हैं इस यहाँ पर, वो कोई भी परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, वो चेंज हो सकते हैं। एक दिन वो रिश्ता हमें छोड़कर चला जाता है, हमसे दूर चला जाता है, चाहे वो इस दुनिया में हो, चाहे जब हम मर जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमसे वो रिश्ते छूट जाते हैं। तो कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, कोई रिश्ता भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है हमारी ज़िंदगी में। जो एक परमानेंट रिश्ता हमारे पास है, जो स्थायी, हमेशा के लिए स्थायी रहने वाला है, वो है कृष्ण। वो कृष्ण ही हमारे दिल में हमेशा बसते हैं और वो ही हमारे शुभ चिंतक हैं। तो वो हमारे साथ हमेशा रहने वाले हैं, चाहे वो इस बर्थ में हो, चाहे इस जन्म में हो, चाहे वो अगले जन्म में हो, या जब हम इस शरीर को त्याग देते हैं तब। तो ये रिश्ता हमेशा ही हमारे
साथ रहने वाला है। कलयुग का समय है, इसलिए कोई यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो कलयुग के टाइम के लिए एक ही महामंत्र हमें दिया है नाम सिमरन का, जो है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम नाम चैंटिंग से, नाम के सिमरन से ही हम कृष्ण को पा सकते हैं, उनके समीप रह सकते हैं, उनके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं, और वही हमारे शुभ चिंतक हमेशा के लिए बने रहते हैं। इसलिए हमें भगवान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, उसे हमेशा हर समय स्मरण करते रहना चाहिए।